Hello guys, welcome to our new video. Today we are for biology video. Today we are going to study cell cycle in very short videos. See like this in short mind map. I'm going to explain you, and you will get this mind map soon on Telegram channel. Now, cell cycle. We are going to study the cell cycle. Cell cycle. 95% of the cell cycle. 95% of the cell cycle. And 5% of cell cycle. 95% of the cell cycle is interphase. Interphase has three parts. In a very short way, I am going to explain. Interphase is also called as a resting phase. Interphase is also called as a preparatory phase, in which you are going to prepare, in which it prepares for the M phase, mitotic phase or division phase. Here it's a preparatory phase. Here there is no actual cell division. Here there is a DNA replication but no cell division. Here there is a cell division. For this cell division, here we are going to prepare some proteins. We will study in it now. Interphase covers about 95% of the cell cycle. We know human. Take a human black. Human 24 hours generation time is there, and out of cell time is there. 24 hours, 95% means 23 hours, almost 23 hours. And here it's 1 hours. It's M phase, and it is about interphase 95%. It's so 95% it's covered by the interphase, and in this interphase there are three phases: G1 phase, which is also called as gap on phase, G1 phase, G1 phase, S phase, G2 phase. In this sequence it will happen: G1 phase first, then S phase, and then G2 phase. G1 phase gap on phase, S phase synthesis phase, G2 phase gap 2 phase. Now we will learn it individually. G1 phase, in which cell is metabolically active and cell is continuously growing. Here it's given, this line is given specifically for this phase, G1 phase, but actually it happens throughout the cell cycle. Cell is continuously growing. Cytoplasmic growth is continuous. It is continuously growing, right, in the G1 phase. And some cells are there who do not want to divide. Such cells exit the G1 phase. Who do not want to divide. Example of it is, and they enters in a quiescent stage या फिर G0 stage, G0 stage, in which cell is metabolically active. It is metabolically active, but it do not proliferate. It no longer proliferates. Proliferate meaning it is do not divide, no longer divide. Proliferate means divide. It do not divide. No longer it proliferates, no longer it divides, unless called to do so. मतलब हमें अगर इसकी ज़रूरत होगी डिवीज़न की तो हम करवा सकते हैं, बट ये डिवीज़न नहीं करेगी. ये एक मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज में जाएगी बट प्रोलिफरेट नहीं करेगी, मतलब डिवाइड नहीं करेगी बट मेटाबॉलिक एक्टिव होगी. राइट है, ये याद रखो. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उठा सकता है क्वेश्चन. राइट, अनलेस टू कॉल. एग्जाम्पल देंगे इसमें, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हार्ट सेल्स इज एन एग्जाम्पल. ये बहुत इंपॉर्टेंट. हार्ट सेल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाइसेंट स्टेज. फिर क्वाइसेंट स्टेज हमें समझ में आ गया. अगर सेल को डिवाइड नहीं करना हो तो वो G1 फेज के एंड से निकल जाएगा और वो एंटर कर जाएगा क्वाइसेंट स्टेज में, जिसको बोलते हैं G0 स्टेज. क्वाइसेंट फेज, क्वाइसेंट स्टेज एक ही बात है, जिसमें कि सेल जो एग्जिट किया है G1 के एंड से, जो एग्जिट किया है, और G0 में जो एंटर हो गया है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा पर डिवाइड नहीं करेगा, जिसको बोलेंगे बोर्ड बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, ऐसे बोलेंगे. राइट, इंपॉर्टेंट है. Cells which do not divide further exits G1 phase to enter in an inactive stage. देखिए, inactive stage, quiescent stage, G0 stage. ये तीन नाम याद रखो. राइट, इंपॉर्टेंट है. मैं हाईलाइट कर दूंगा इनको. ये देखिए, ये तीन. राइट है, नो लॉन्गर प्रोलिफरेट्स, मेटाबॉलिकली एक्टिव. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. विच फ्रॉम एग्जिट G1 phase, exits G1 phase. राइट, डू नॉट डिवाइड. समझ में आ गया आपको. राइट, देखिए हार्ट सेल्स. ठीक है, हार्ट सेल्स डिवाइड. राइट, प्रोलिफरेट मतलब डिवीजन. राइट, चलिए ठीक है.
अब देखिए इंटरफेज में जीवन फेज हम समझ गए, जिसमें कि सेल मेटाबॉलिक एक्टिव होगा, सेल मेटाबॉलिक एक्टिव होगा, जिसको नहीं डिवाइड करना है वो जीनोट में एंटर करेगा, जो वो भी मेटाबॉलिक एक्टिव होगा बट डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। जीवन फेज से जीनोट में एंटर करेगा अगर उसको डिवाइड नहीं होना है तो। सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, यही का नहीं पूरा सेल साइकिल में पूरा टाइम पे ये कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। कंटिन्यूसली ग्रो करेगा मतलब एक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इट इज कंटिन्यूसली हैपन्स। डीएनए का एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होगा, जिसका कि फुल फॉर्म है सिंथेसिस फेज। बस इतना ही याद रखें, एनसीईआरटी बेसिस पढ़ाई करने की हमें, एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर बाद में जीवन हो गया, एस हो गया, फिर आ गया G2 फेज। G2 फेज का सिंपल है गैप सेकेंड फेज। अब जीवन फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलाते, प्री सिंथेटिक फेज भी बोलाते। इसको पोस्ट सिंथेटिक फेज G2 को पोस्ट सिंथेटिक प्री माइटोटिक फेज बुलाते हैं। गैप सेकेंड फेज, इसमें क्या होता है, ये प्री सिंथेटिक फेज है, प्री माइटोटिक फेज है, तो माइटोटिक डिवीजन के लिए माइटोटिक स्पिंडल्स चाहिए, वो बनाने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। सो इस स्टेज में प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ये मैंने आपको इजी जाए याद रखने के लिए, इसलिए मैंने माइटोटिक स्पिंडल का बता दिया, उसको प्रोटीन्स लगेगा। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस गैप सेकेंड फेज में होगा। देखिए सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, मैंने बोला था सेल साइकिल के कंटिन्यूसली सेल ग्रोथ होगी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का सेल ग्रोथ कंटिन्यूस साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, और डीएनए का एप्लीकेशन स्पेसिफिक है जो कि एस फेज में होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतना सेक्शन कंप्लीट कर लिया, इतना, राइट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम बढ़ेंगे अभी एम फेज की ओर, एम फेज की ओर हम बढ़ेंगे। एम फेज माइटोटिक फेज, मियोसिस फेज भी होता है पर वो बाद में। यहाँ पे माइटोटिक फेज पढ़ने वाले, मेटोसिस फेज, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते, क्या इसको बोलते इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन बोलते, इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड किया जाता है, मतलब पैरेंट में अगर 32 क्रोमोसोम्स हो तो जो डॉटर बनेंगे दो, उनमें भी 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे, 32 और 32, इसलिए बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड द डॉटर्स, ठीक है। एम फेज माइटोटिक फेज, इसका सिग्निफिकेंस पहले जान लेते हैं कैसा होता है। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल हम में माइटोसिस होता है, सेल्स डिवीजन होता है, डिप्लॉयड सेल्स डिप्लॉयड ही बनेगा, यहाँ पे मल्टी सेलुलर सेल्स में ग्रोथ होगी माइटोसिस से। रिस्टोरिंग द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो कि डिस्टर्ब होता है, क्यों होता है? ग्रोथ की वजह से जो डिस्टर्ब होता है, क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ की वजह से डिस्टर्ब होता है, जो कि रिस्टोर होता है। क्यों? माइटोसिस फेज की वजह से ये रिस्टोर हो जाता है सेल रिपेयरमेंट के लिए। और माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिमिलरली इन ग्रोथ इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स, जैसे हमारे में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब हम में ग्रोथ होती है, सिमिलरली प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की हेल्प से ग्रोथ होती है, किसकी हेल्प से? माइटोसिस की हेल्प से, ठीक है। सिग्निफिकेंस पढ़ लिया है, ठीक है, इतने ही सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल लाइन ऑफ गट की लाइनिंग में है, एपिडर्मिस में है, और ब्लड सेल्स में है, सेल रिपेयरमेंट इन ब्लड सेल्स, लाइनिंग ऑफ द गट, और एपिडर्मिस में रिपेयरमेंट के लिए एग्जाम्पल्स है। अब ये याद रखो, एग्जाम्पल में बाद में ये शॉर्ट नोट्स है, इसकी वजह से कम मतलब शॉर्ट में दिया गया है, लॉन्ग में पढ़ना है तो हम लेक्चर लेंगे बड़े बड़े, ठीक है। कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, एम फेज को डिवाइड किया गया है साइटोकाइनेसिस और कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग होता है न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग। और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम या फिर न्यूक्लियर डिवीजन, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है।
अभी ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा चार्ट है, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले अब कार्योकाइनेसिस को 4 भागों में डिवाइड किया है, छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं बड़ा बड़ा करता हूँ। कार्योकाइनेसिस का पहला फेज़ है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट है प्रोफेज, सेकेंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, फोर्थ है टीलोफेज। ठीक है, अब पहले मैं बेसिक्स से एक्सप्लेन करता था, बहुत सिंपल ओवरव्यू की तरह। पहले प्रोफेज, प्रोफेज में देखिए सिंपल लाइन दिया है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगा, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलोप सब डिसअपियर हो जाएगा। सेंट्रियोल डिवाइड कर देगा, सेंट्रियोल डिवाइड कर देगा कब? अगर एस फेज में सेंट्रियोल ने डुप्लीकेट किया है, अब वो सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स में पहुंच जाएंगे। अब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ये प्रोफेज में हो जाएगा। मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होगा? जो मेटाफेज स्टार्ट कब होगा? जब न्यूक्लियर एनवेलोप डिसअपियर हो जाएगा, तब मेटाफेज स्टार्ट होगा, वो इसका इंडिकेशन है। क्रोमोसोम स्कैटर्ड, जो क्रोमोसोम अभी विजिबल है, स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, वो अभी मेटाफेजिक प्लेट मतलब इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अलाइन हो जाएंगे, उस पर स्पिंडल फाइबर जाके अटैच भी हो जाएंगे मेटाफेज में। और फिर एनाफेज में जो मेटाफेजिक प्लेट बनी है मेटाफेज में, वो सेपरेट हो जाएगा। मतलब सेपरेट क्या होगा? सेंट्रियोल जो कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को हेल्ड करता है, वो सेपरेट हो जाए, सेंट्रल साइड से रहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, फिर ऐसे सेपरेट कर जाएंगे और बाजू पोल्स पे सेपरेट हो जाएंगे। क्यों? स्पिंडल फाइबर्स जो उसको अटैच रहे वो उसको शॉर्टनिंग हो जाएगा, उसका लेंथ छोटा छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेंट्रोमियर है वो सेपरेट करेगा, सेंट्रोमियर सेपरेट करेंगे, टूट जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड से सेपरेट हो जाएंगे, जो कि डॉटर न्यूक्लियर बनाएंगे फ्यूचर में। तो एनाफेज का बेसिक एक्सप्लेनेशन। फिर टीलोफेज, टीलोफेज में कुछ भी नहीं है, जो हमने सेपरेट किए इंडिविजुअल ऐसे 23 क्रोमोसोम्स वहाँ पे हैप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड नंबर में डिप्लॉइड है, बस यहाँ पे डायड था ना, वो मोनाड बन गया, और मोनाड फॉर्म्स जाके एक एंड में जाके डॉटर न्यूक्लियर बनाएंगे, जिसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, बट वो डायड नहीं होंगे, वो मोनाड होंगे। अब टीलोफेज में क्या होगा? उसका न्यूक्लियर एनवेलोप बनेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो भी पहले डिसअपियर होगा वो रिफॉर्म होगा, मतलब एक टाइप सेल बन गई न्यू, वैसा हो जाएगा। अब हर एक लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले प्रोफेज पे आएंगे, जो कि पहली फेज है कार्योकाइनेसिस की। प्रोफेज मैंने बोला कंडेंसेशन, प्रोफेज स्टार्ट होगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल में। जो हमारा क्रोमोसोम है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, मतलब वो डीकंडेंस्ड फॉर्म में है, टैंगल्ड फॉर्म में है, उसको अनटैंगल्ड करना पड़ेगा। टैंगल मतलब गुत्ता फॉर्म में है एक टाइप, उसको कंडेंसेशन के बाद वो एकदम प्रॉपर फॉर्म में एकदम अच्छे शेप में आ जाएगा, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। सेंट्रियोल जो कि डुप्लीकेट हुए हैं, सेंट्रियोल अभी यहाँ पे लिख देते, वहाँ पे नहीं था। सेंट्रियोल डुप्लीकेटेड इन एस फेज, जो कि डुप्लीकेट हुए हैं एस फेज में। सेंट्रियोल जो कि डुप्लीकेट हुए हैं, सेंट्रियोल जो कि डुप्लीकेट हुए एस फेज में डुप्लीकेट हुए एस फेज में, वो सेंट्रियोल अब अपोजिट पोल्स में, सेंट्रियोल अब अपोजिट पोल्स ऑफ सेल्स में, सेंट्रियोल्स मूव होंगे अपोजिट पोल्स ऑफ सेल्स में, सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स में रीच करेंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मेशन बिगिंस, और फॉर्म भी कंप्लीट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। प्रोफेज जब एंड हो जाएगा तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, बट लाइन यहाँ पे नहीं दी गई, यहाँ पे बिगिंस बोला है, कंप्लीट भी यहीं पे होगा, बट एनसीईआरटी में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया कंप्लीट कहाँ पे होगा, तो हमें लाइन रटना होगा। मैं बता रहा हूँ, वो याद रखो, सिंपल जाएगा। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिंस एंड कंप्लीट्स इन प्रोफेज। एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक, सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा एट द एंड ऑफ प्रोफेज। ये क्वेश्चन इजीली पूछेगा, ये बहुत पूछने के चांसेस है, राइट। कंडेंसेशन हो जाएगा, सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स में मूव कर जाएंगे, 2 सेंट्रियोल्स होंगे जो कि एक सेंट्रियोल रहेगा एस फेज में, वो डबल हो जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ पे वो अपोजिट पोल्स में रीच करेंगे। स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा, किससे? सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, बैसल बॉडीज बनाएगा, उससे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा।
बिगिंस बोल सकते, कंप्लीट बोल सकते, एक ही बात है। और फिर एट लास्ट प्रोफेज में ये 4 जन डिसअपेयर हो जाएंगे। न्यूक्लियर एनोलोप के डिसअपेयरेंस से ही इसका इंडिकेशन है कि मेटाफेज शुरू हो गया। ये डिसअपेयर हो गया मतलब ये समझ लो कि मेटाफेज शुरू हो गया, ऐसे एनसीईआरटी में लाइन दी गई है जी। अब न्यूक्लियर एनोलोप डिसअपेयर हो गया तो क्रोमोसोम को हेल्ड करने वाला अब कोई भी नहीं है, तो क्या स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम स्कैटर्स इन द साइटोप्लाज्म्स, क्रोमोसोम स्कैटर हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। इन द अर्ली मेटाफेज में क्रोमोसोम स्कैटर हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स अब उन क्रोमोसोम के सेल में हमने पढ़ा हो, सेल में आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रोमियर पे स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर पे एक डिस्क शेप्ड प्रोटीन्स रहेगा काइनेटोकोर। वो काइनेटोकोर वो साइट है स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट का। तो स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, काइनेटोकोर जो कि डिस्क शेप्ड प्रोटीन्स है जो प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमियर पे, उस पर जाके अटैच करेंगे, राइट। मतलब पहले क्या क्रोमोसोम स्कैटर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा काइनेटोकोर पे, अटैच हो जाएगा। फिर अटैच होने के बाद वो स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से वो सभी लोग मतलब वो जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे, एक प्लेट बनाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जिसको कि इसके नाम पे रखा गया है मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे, वो मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे वो अलाइन हो जाएंगे। देखिए chromosomes now lined up at the equator form equatorial plate metaphysic plate. सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर ये इसका है, यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। क्रोमोसोम स्कैटर्ड स्पिंडल फाइबर अटैच के बाद वो मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये जो स्टेज है मेटाफेज, ये बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए। क्यों, रीज़न है, एसेरेशन रीजन में आ सकता है, दे सकता है। मेटाफेज इज़ द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, या फिर बेस्ट स्टेज मॉर्फोलॉजी मतलब शेप एंड साइज़ की, क्रोमोसोम की शेप और साइज़ के लिए बेस्ट स्टेज है स्टडी के लिए। क्यों, ये रीज़न में देगा। क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल स्टार्ट्स हियर बट हियर इट एंड्स। रीज़न क्रोमोसोम condensation completes in मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट होगी, इसलिए ये बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी के स्टडी करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेरेशन एंड रीजन टाइप ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया क्रोमोसोम मेटाफिजिक प्लेट बनाएगा। अब ये इसका पार्ट है, राइट। देखिए एनाफेज शो होता है, वो मेटाफिजिक प्लेट बन गया, स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट भी हो गया। अब बचा यही है कि जो क्रोमोसोम, अभी देखिए ये क्रोमोसोम है, ये दो, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों मिलके ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये क्रोमोसोम बन गया और वो अटैच रहे सेंट्रोमियर। ऐसा है, ये सेंट्रोमियर है, ये जो पोर्शन है ये सेंट्रोमियर है, ये भी सेंट्रोमियर से अटैच रहे। ये उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दो, ये आर्म्स हैं उनके, ये ऊपर के और ये नीचे के आर्म्स, राइट, ये आर्म्स है। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे काइनेटोकोर से अटैच रहे, काइनेटोकोर जो कि सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट है, स्पिंडल फाइबर से अटैच रहे। अब वो स्पिंडल फाइबर से एनाफेज में क्या होगा, वो स्प्लिट होगा। क्या स्प्लिट होगा, ये सेंट्रोमियर जो है, जो इनको अटैच दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को जो अटैच करके रखा है उसको सेंट्रोमियर को स्प्लिट करेगा, तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, शॉर्टनिंग होगा स्पिंडल फाइबर्स का, ये तोड़ देंगे जिससे कि ऐसे सेपरेट होंगे और खींचेंगे या अपोजिट पोल्स पे ये दोनों, ये मोनाड पहले डायड थे, अब ये मोनाड हो गए। नंबर सेम रहेगा, नंबर सेम कैसे रहेगा, देखिए नंबर यहाँ पे डबल हो जाएगा और जो डॉटर सेल्स फाइनली बनेंगे उनमें समझो 32 क्रोमोसोम्स है पैरेंट में, तो एनाफेज के टाइम पे इक्वेशनल डिवीजन है इसलिए डिवाइड हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम यहाँ पे एक था, दो हो गए, मतलब 32 थे, 32 थे, 64 हो गए। किस स्टेज में, एनाफेज में। बट
फाइनली जब आगे जाके हम पता चले डॉटर सेल्स बनेंगे, उसमें 32 और 32 प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा, दो अलग सेल्स बन जाएंगे। ये 32 जो एक सेल में थे वो अलग दो सेल्स बन जाएंगे। ये इस स्टेज में डबल हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर, बट डायड थे तो मोनोड बन जाएंगे। मतलब ये देखिए ऐसा क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स ये सेपरेट हो जाएंगे ऐसे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे सेपरेट कर देंगे इन दोनों को ऐसे। मतलब ये अभी लाइना कटेंगे, इसके लाइन कटेंगे तो समझ जाएगा आप। शॉर्टेस्ट फेज़ है अनाफेज, शॉर्टेस्ट फेज़ है, ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड सेंट्रोमियर स्प्लिट करेंगे। सेंट्रोमियर मतलब क्या, जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को अटैच करके रखता है उसको, वो स्प्लिट हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स से सेपरेट करेंगे। स्प्लिट ये होगा, सेपरेट ये होंगे, राइट। सिस्टर क्रोमेटिड्स ना मूव टू द अपोजिट पोल्स, मैंने बताया ये दोनों ऐसे अपोजिट पोल्स में मूव करेंगे, राइट। सेंट्रोमियर्स अभी कैसे प्रूव करके देखें, ये ऐसा यहाँ पे एक ही का देखेंगे। अभी ऐसा था, ये ऐसा थे, एक ऐसे मतलब ड्राइंग करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये ऐसा, ये सेंट्रोमियर देखिए, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ये पहले ऐसे थे ना, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे। अब बाद में ऐसा कैसा होगा देखिए, बाद में क्या होगा देखिए, स्प्लिटिंग के बाद सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे। मतलब ये लाइन का मतलब समझ लाने के लिए मैंने आपको ड्राइंग दी है। देखिए सेंट्रोमियर्स, जो सेंट्रोमियर्स है, ये जो सेंट्रोमियर्स है, ये जो सेंट्रोमियर्स है, ये और ये और ये जो सेंट्रोमियर्स है वो प्रोजेक्टेड टूवर्ड द पोल्स। अभी देखिए ये सेल है, ये पोल है एक, और ये दूसरा पोल है। Centromeres are projected towards the poles. ये centromere it is projected towards the poles. Arms, ये जो आर्म है एक, इसका इस सेंट्रोमियर्स के दो आर्म्स, वो आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड इट, मतलब ऐसे जा रहे हैं ऐसे। यहाँ पे ये है स्पिंडल फाइबर, ये एक साइड का पोल है स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच रहे, वो खींच रहा है, इसलिए वो जो सेंट्रोमियर है, ये जो पोर्शन है सेंटर वाला सेंट्रोमियर, और ये दोनों आर्म्स है उसके, ये आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड इट ऐसे पीछे, और ये सेंट्रोमियर ये आगे, मतलब सेंट्रोमियर्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स, द आर्म्स आर, ये दो आर्म्स है वो ट्रेलिंग मतलब पीछे लटकते हुए आ रहे हैं। आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड इट, फॉलो कर रहे हैं सेंट्रोमियर को, इसका ये मतलब है। सेंट्रोमियर्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स, आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड द सेंट्रोमियर। खत्म, समझ गए? ये डायग्राम से आप समझ जाएंगे। देखिए ये सेंट्रोमियर, ये आर्म्स ये इस साइड में डायरेक्टेड है, और जो आर्म्स है उसके पीछे मतलब ट्रेल कर रहे हैं, सिंपल। साइटोकाइनेसिस बिगिंस एट द लेट एनाफेज, जो साइटोकाइनेसिस है सेपरेशन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ये लेट एनाफेज में स्टार्ट होता है। ये भी एक फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा बस। अब देखिए हम टीलोफेज ये फाइनल स्टेज है, ये शॉर्टेस्ट फेज है, और ये फाइनल स्टेज है टीलोफेज। जो हमने पहले प्रोफेज में सिंपल सेल में जब एक पैरेंट सेल होता है जो डिवीजन नहीं कर रहा, उसमें क्रोमोसोम टैंगल्ड मतलब डीकंडेंस्ड फॉर्म में है, और जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तब कंडेंसेशन शुरू होती है, एक अच्छा शेप मिलता है क्रोमोसोम्स को। अब जब हमारा सेल डिवीजन ख़त्म होगा, न्यू सेल्स बन गए, तो हमें डीकंडेंस, वो जो क्रोमोसोम बने हैं उनको डीकंडेंस भी करना पड़ेगा। इसलिए टीलोफेज में देखिए फाइनल स्टेज है, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस, जो प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ था उसके अपोजिट क्रोमोसोम्स डीकंडेंसिस, क्लस्टर्स, ऐसा इकट्ठा मतलब ऐसे गोले की क्लस्टर एक ग्रुप की तरह, गुत्ते की तरह
गुत्ता गुत्ता बोलते हैं, रस्सी का गुत्ता हो जाता है वैसे। क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल, अच्छा अपोजिट स्पिंडल पोल्स, स्पिंडल पोल्स मतलब पोल्स, सेल के पोल्स जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स इनिशिएट हुए हैं। देखिए ऐसा, ऐसे ये सेल है, सेल है, यहाँ पे पोल्स है, ये एक पोल यहाँ पे ऐसे स्पिंडल फाइबर्स, इसलिए बोलते हैं स्पिंडल। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म नहीं हुए ना, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, इस पोल पे स्पिंडल फाइबर नहीं फॉर्म हुआ, इस पोल पे स्पिंडल फाइबर नहीं फॉर्म हुआ, तो इस पोल को बोलेंगे स्पिंडल पोल्स। तो क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एंड क्लस्टर्स एट द अपोजिट, मतलब ये जो आ गए हैं यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स अटैच होकर आ गए हैं, यहाँ पे क्लस्टर बनेगा, ऐसा गोला बनेगा, इस स्पिंडल पोल्स पे क्लस्टर बनेंगे, अपोजिट स्पिंडल पोल्स पे क्रोमोसोम डीकंडेंस करेंगे, न्यूक्लियर एनोलोप, जब डीकंडेंस करेंगे तो यहाँ पे बाजू में न्यूक्लियर एनोलोप बनेंगे, न्यूक्लियोलस बनेगा, गोल्गी बॉडी बनेगी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होगा। जो प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे यहाँ पे रीअपियर हो जाएंगे, जिससे कि न्यू सेल बन जाएगा। अब यहाँ पे एक सेल बन जाएगा, ऐसा न्यूक्लियर बन जाएगा, डॉटर न्यूक्लियर, 2 डॉटर न्यूक्लियर बन जाएंगे, ये डॉटर न्यूक्लियर बन जाएंगे। अब देखिए मैं ब्लैक, यहाँ पे एक डॉटर न्यूक्लियर, यहाँ पे एक डॉटर न्यूक्लियर बन जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनोलोप रिपेयर हो गया, न्यूक्लियस रिपेयर हो गया, सब कुछ सेल के जो कंपोनेंट होते हैं वो रिपेयर हो गए 2 पोल्स पे, मतलब 2 डॉटर न्यूक्लियर बन गए। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, जो कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साइटोकाइनेसिस बिगिंस एट द लेट एनाफेज, यहाँ पे बिगिन हो जाएगा, और ये जब डॉटर न्यूक्लियर बन जाएगा तब तक यहाँ पे डिवीजन हो गया होगा। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, अंदर जो कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट, जो कंटेंट इसमें ऐसा भगा हुआ है साइटोप्लाज्म, उसका डिवीजन होगा, ऐसा डिवीजन हो जाएगा, और 2 न्यू सेल्स बनेंगे, ऐसे 1 2, वो डॉटर न्यूक्लियर है। अब ये जैसे डॉटर न्यूक्लियर बोलेंगे, फिर बाद में ये भी डिवाइड करेंगे, इसको पैरेंट सेल्स बोलेंगे। सिंपल इतना ही था। इस शॉर्ट एकदम शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। इसका PDF फॉर्म टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो बनिए रहिए। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।